Quantum mechanical model of atom means nucleus. Nucleus is surrounded by a confined space. That confined space contains moving electrons. Contains moving electrons. The electron which is away from the nucleus has more energy, and the electron which is near to the nucleus has less energy. So, surrounding nucleus, moving electrons are present. Moving electrons are present. Electron near to nucleus has less energy, and away from nucleus has more energy. Then what is the direct relation between energy and, आप लोग आप बोलेंगे एनर्जी तो मैं वर्ड दे दिया, आगे और किसके साथ रिलेशन बना रहा है एनर्जी? हाँ रेडियस. किसका रेडियस? ऑर्बिट का रेडियस. वो अपन करें, अपन यहाँ रेडियस वर्ड नहीं यूज नहीं करेंगे. यहाँ क्या करेंगे? पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस. सो देयर इज डायरेक्ट रिलेशन between energy of electron and its position from nucleus. Okay, beta. Now, this one is called Hamilton operator. Hamilton operator. Hamilton operator H cap is used in matrix calculus mathematics. मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? मैट्रिक्स का मतलब होता जैसा कोई जगह है उसमें चले गए लेकिन निकलने का रास्ता नहीं मिलता. हाँ हाँ, भूल भुलैया. समझे? बोल तो अब जैसा इस वक्त अपन जहां पर रह रहे, समझे, ये कॉन्फ़िगर्ड है. अपने को मालूम है क्या होने वाला है, नहीं मालूम है क्या होने वाला, नहीं मालूम है. तो अपने लिए जो अब फ्यूचर है वो डिटरमाइंड है अनडिटरमाइंड है? अनडिटरमाइंड है. अनडिटरमाइंड है बोलते तो ये अपने एक डाउट में जी रहे ना, कल क्या होने वाला है नहीं मालूम. तो इसको बोलते मैट्रिक्स. मैट्रिक्स बोलते एक अजीबोगरीब है फ्यूचर जिसको अपन डिसाइड नहीं कर सकते. तो न्यूक्लियस के आजू बाजू इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है अपन डिसाइड नहीं कर सकते. तो मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स को कैलकुलस के साथ ऐड करके इसका सोल्यूशन निकाले. किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए. सुनाओ. हैमिल्टन ऑपरेटर psi h cap equals to energy psi स्क्वायर लेंगे, वेयर इज एनर्जी साई. इसको पढ़ेंगे कैसे आप लोग? साई, दिस वन इज इक्वल्स टू वेव फंक्शन. वेव फंक्शन
psi square amplitude of electron. Amplitude of electron means probability. Probability. अब क्या होता है ये बताएंगे अब आपको. This one is nucleus. Now while moving, nucleus is moving in this path. Electron is moving in this path surrounding the nucleus. This distance from the nucleus we are calling amplitude. क्या बोलेंगे इसको? और अपन नील्स बोर क्या बोले इसको? रेडियस ऑफ ऑर्बिट कौन बोले? नील्स बोर from Bohr's theory. From Bohr's theory. So now just see, the velocity of electron is very high. Velocity of electron is very high. So we can find it in confined space only. Confined space. Confined space only. क्या मतलब देखेंगे अब. किनके तो भी फादर है, घर से निकलते जॉब को सवेरे 5:30 कुछ, आते रात को 12:30. किसी पर्सन को उनसे मिलना है तो कहाँ मिलना हो? घर पे ही 12:30 के बाद में, नहीं तो सवेरे 5:30 के पहले. फिर निकलने के बाद उन कहाँ है किसको मालूम? करेक्ट है. तो कन्फाइंड टाइम क्या है मालूम है? मॉर्निंग नाइट 12:30 टू 5:30, वो कन्फाइंड टाइम. सो हियर व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग राउंड द न्यूक्लियस, ये ऐसा घूम रहा होगा, और इट मे बी मूविंग in this fashion, or it may be moving in this fashion. So I am showing this one is first confined space, second confined space, third confined space. So just this one is, this confined space is called orbital. What we are calling? Orbital. क्योंकि यहाँ पर है, ये छोटी सी जगह है, यहाँ पर मिलने के चांस ज्यादा है. Why? Because velocity is very high. तो थोड़ी जगह के अंदर ही मिलने के चांस, नहीं तो बड़ी जगह है वो तो जब तक तो निकल जाता हूं. So here probability of finding of electron is maximum. Probability of finding electron is maximum. This region is called, this is called orbital. Orbital. So just Hamilton function H cap is the probability of presence of electron. कहां पर? Of electron in orbital. In an orbital. Now when this one is solved for hydrogen, when Hamilton operator solved for hydrogen in first step, solution for orbit, second step solution for suborbit, in third step
solution for ऑर्बिटल। तो जब ये इसका सोल्यूशन, ये छोटा इक्वेशन है, ये बहुत बड़ा इक्वेशन है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर के अंदर फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही है इलेक्ट्रॉन इन ए बॉक्स। हाँ, एक बॉक्स में कंसीडर करके कैलकुलेट करो साहब, वो अपने को लेना देना नहीं है उससे। सो फर्स्ट स्टेप में किसका सोल्यूशन करें अपन? ऑर्बिट का। सेकंड स्टेप में किसका सोल्यूशन करें? सब ऑर्बिट का। थर्ड में नाउ फॉर ऑर्बिट n, for suborbit L, for orbital m। तो सोल्यूशन करें तो फर्स्ट स्टेप में क्या है? n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकंड वन इज अजीमुथल क्वांटम नंबर। थर्ड वन इज मैग्नेटिक क्वांटम। किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं अपन? ये इलेक्ट्रॉन के लिए। चलो लिखो बेटा।